Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. So, question number 9. Find the rate of interest compounded annually if the annuity immediate at rupees 20,000 per year amounts to rupees 2,60,000 in 3 years. हमको यहाँ पे क्या find out करना है? Rate of interest. Question number 9. C is equal to कितना दिया है? Rupees 20,000. A कितना दिया है? Rupees 2,60,000. We have to find out rate of interest and N is 3 years. और यहाँ पे क्या बोला है? Annuity immediate मतलब A is equal to C upon I 1 plus I whole raised to power n minus 1. A is your 2,60,000. C is your 20,000. Okay. I is equal into 1 plus I whole raised to power n minus 1. 2 1s are 2, 13s are. So 13 I is equal to 1 plus I whole n is your 3 na? N is your 3. 3 minus 1. Okay. So what is the, we have to solve this by identity A plus B whole cube. What is the identity of A plus B whole cube? A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. So 13I is equal to A cube means 1 cube plus 3 1 square into I plus 3 into 1 into I square plus I cube minus 1. So 13I is equal to 1 plus 3 I plus 3 I square plus this one will be I cube. I cube minus 1 plus 1 minus 1 will get cancelled. So 13I is equal to 3I plus 3I square plus I cube. 13I minus 3I is equal to 3I square plus I cube. Okay. So 10I is equal to, यहाँ से अगर मैंने I square कॉमन लिया तो कितना आएगा? 3 प्लस I. ओके. यहाँ से I और I कैंसल हो गया. So 10 is equal to I into 3 plus I. Again I will multiply 3I plus I square. So it will be quadratic equation. तो यहाँ पे क्या होगा? I square plus 3I minus 10 is equal to 0. So हमको प्रोडक्ट कितना चाहिए? minus 10. सम कितना चाहिए? 3. So क्या होगा यहाँ पे? 5 और -2 बराबर है 5 और -2. सो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? I स्क्वायर प्लस 3I minus 10 is equal to 0. So I square plus 5I minus 2I minus 10 is equal to 0. I से यहाँ पे I plus 5 minus 2 I plus 5 is equal to 0. So I plus 5 I minus 2 is equal to 0. I plus 5 is equal to 0, I minus 2 is equal to 0, I is equal to minus 5 and I is equal to 2. But I का फॉर्मूला क्या है? I is equal to R by 100 होता है ना. तो अगर I हमने यहाँ पे -5 लिया तो अपना R भी निगेटिव में आएगा. बट हमारा I कैनॉट बी निगेटिव. तो हमारा I निगेटिव नहीं हो सकता. तो इसलिए हम लोग इसको निग्लेक्ट करेंगे. बट I कैनॉट बी निगेटिव. Therefore, I is equal to 2. So, I is equal to 2 by, sorry, I is equal to R by 100. I कितना है? 2 is equal to R by 100. 2 by 100. So, R is equal to 2 into 100. That is 200. तो तुम्हारा rate of interest कितना आ गया? Therefore, the rate of interest is 200% per annum. Understood? ये वाला जो है आइडेंटिटी से लगाना है. A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब. आई होप आपको आइडेंटिटी याद है. ओके. फिर मैंने इसको यहाँ से एक्सपांड किया. ये जो I है जो डिनोमिनेटर में था वो अभी मल्टीप्लाई में चला गया. सो 13 है. ये वाला यहाँ पे लेके गई तो -3I इज इक्वल टू 3I स्क्वायर माइनस I क्यूब. यहाँ से मैंने I स्क्वायर कॉमन निकाला. क्या आ गया?
3 माइनस आई। ओके, सो आई से ये कट गया तो कितना बचा, आई, सिंपल आई। 10 इज इक्वल टू, फिर मैंने फिर से मल्टीप्लाई किया 3i प्लस आई स्क्वायर। तो अभी ये क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोडक्ट कितना चाहिए, -10, सम कितना चाहिए 3। सो 5 इंटू -2 इज इक्वल टू -10। 5 प्लस ऑफ -2 इज इक्वल टू 3। तो 3 तुम्हारा सम, प्रोडक्ट तुम्हारा -10। तो ये आ गया तुम्हारा i इज इक्वल टू -5। -5 नहीं हो सकता, वरना r इज इक्वल टू तुम्हारा -500 आता, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नेगेटिव में नहीं रहता। देयरफॉर हमने इसको यहाँ पे निग्लेक्ट किया। सो i इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव नंबर लिया। सो i 2 है r अपॉन 100। सो r इज इक्वल टू 2 इंटू 100, दैट इज 200। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 200 पर एनम। अंडरस्टूड? यस मैम। चलो लिखो। Done with this page? यस मैम। Done? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स। मतलब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट n फॉर विच द एन्युटी ऑफ रुपीज 500। so c is your 500 is paid at the end of every year, is paid at the end of every year। मतलब क्या है ये, कौन सी है एन्युटी, इमीडिएट है कि एन्युटी ड्यू है। इफ द accumulated amount would be rupees 1665, तो ए क्या है तुम्हारा 1655 when interest is compounded annually at 10% per annum। so r कितना है तुम्हारा यहाँ पे 10% per annum, but we have to calculate n। इमीडिएट एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी है। क्वेश्चन 10, सी इज योर रुपीज 500, ए कितना है 1655, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum। वी हैव टू कैलकुलेट n। ओके, एन हमको फाइंड आउट करना है। सो आई इज इक्वल टू आर बाय 100, आर इज इक्वल टू आर बाय 100। सो आई therefore 10 upon 100 is equal to 0.1। हर्षल, योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे a is equal to c by I 1 plus I whole raised to power n minus 1। a is 1655 is equal to, ये कितना है 500 upon 0.1, 1 plus 0.1 whole raised to power n minus 1।
So 1655 is equal to 5000, 1.1 whole raised to power n -1. तो यहाँ से अगर मैंने ये किया 5000 और ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 331. So 331 upon 1000 is equal to 1.1 whole raised to power n -1. तो ये कितना आ जाएगा 0.333 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.1 होल रेस्ट टू पावर 1. तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1.3, नहीं ये 331 है आया, 333 कैसे लिखा मैंने, 331. सो 1.331 1.331 इज इक्वल टू 1.1 होल रेस्ट टू पावर n. अभी देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121. 11 क्यूब इज 1331. तो ये वाला क्या होगा तुम्हारा 1.1 होल रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 1.1 होल रेस्ट टू पावर n. एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था जब अगर 2 रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर 8 है तो बेसिस अगर सेम है और इक्वल में है तो x इज इक्वल टू 8 आता है. तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे बेसिस आर इक्वल और ये इक्वल में है तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 3. देयरफॉर तुम्हारा द एन्युटी इज पेड फॉर 3 years. देयरफॉर द एन्युटी is paid for 3 years. Understood? So write it down. Done? Yes, ma'am. Question number 11. Now you have to solve this. Find the accumulated value of annuity due बोला है और उसकी accumulated value तो V A dash से हम लोग डिनोट करते हैं उसको of ₹1000 per annum for 3 years at 10% per annum compounded annually given 1.1 का क्यूब कितना है 1.331. सो हमको क्या निकालना है एन्युटी accumulated value of annuity due. ओके क्वेश्चन नंबर 11 ए डैश हमको वी हैव टू फाइंड आउट. सी कितना दिया है ₹1000. एन इज योर 3 years and rate of interest is equal to 10% per annum. Again I is equal to R by 100 that is 10 upon 100 तो वो कितना आएगा 0.1. और ए डैश का फॉर्मूला क्या है सी को हम लोग 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू आई इन ब्रैकेट 1 plus 1 plus I whole raised to power n minus 1. A, you have to calculate. C is 1000 into 1 plus 0.1 whole divided by 0.1, 1 plus 0.1 raised to power 3 minus 1. Can you find out? So A dash is equal to 1000, ये 0 into 1.1 in bracket 1.1, 1.1 का कितना दिया है 1.331, right? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.331 minus 1. सो A dash is equal to 234. तो ये कितना आ जाएगा into 0.331. तो ये कितना होगा 1 A dash is equal to 11,000 into 0.331. चलो फाइंड आउट करो A dash. Therefore accumulated value of annuity is rupees how much?
Everyone is getting 3641. Yes, ma'am. So rupees 3641. Accumulated value of annuity due is rupees 3641. Question number 12. A person plans to put rupees 400 at the beginning of each year for 2 years. At the beginning of each year, matlab annuity due, it is mentioned over here. For 2 years in a deposit that gives interest at 2% per annum compounded annually. Find the amount that will be accumulated at the end of the 2 years. Come on, solve this now. 12. I will write only given. You have to tell me its answer. Okay. C कितना दिया है? Rupees 400. N is 2 years. R is your 2% per annum. हमको क्या फाइंड आउट करना है? Accumulated amount. A C into 1 plus I whole divided by I in bracket 1 plus I whole raised to power n minus 1. Come on. बता मुझे इसका आंसर. What is the answer of 12? Ma'am, 824.16. Yeah, correct. Everybody is getting 824.16 rupees. Yes, ma'am. Okay, now 13th. Find the present value of the annuity due. मतलब P dash हमको निकालना है of rupees 600. C is your 600 to be paid quarterly at 32% per annum. Rate of interest क्या है? 32. Compounded quarterly. अभी compounded quarterly बोला है तो मैंने जो points लिखवा के दिए थे 4. उसमें से R क्या रिप्लेस होगा? Compounded quarterly है तो R by 4. Rate of interest कितना है? 32% per annum. और N कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 into N. बराबर है? इन्वेस्ट. ठीक है, इतना समझा? Yes, ma'am. ओके. और एन कितना है तुम्हारा? एन यहाँ पे 4 है तो आर कितना हो जाएगा? मतलब आर हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं? एक्चुअल आर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 32/4. मतलब कितना हो जाएगा? 8%. और एन कितना हो जाएगा तुम्हारा? एन कितना होगा? 4 होगा. 16. नहीं, एन विल बी 4. एक मिनट देखो. Find the present value of the annuity due rupees 6,000 to be paid quarterly at 32% per annum compounded quarterly. So n will be your 4 only. Okay, and given क्या है? 1.08 raised to power minus 4 is 0.7350. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा? 1. कितना दिया है? 1.08 raised to power minus 4. 1.08 raised to power minus 4 is equal to 0.7350. So R को हम लोग कैसे लिखेंगे? अमाउंट देखो यहाँ पे क्या है? अमाउंट इज इन्वेस्टेड. अमाउंट इज इन्वेस्टेड every quarter for 1 year. So n is equal to यहाँ पे 4 और R is equal to कितना हो जाएगा तुम्हारा? 32/4. That is 8%.
ठीक है, तो अभी P का फॉर्मूला क्या है, P डैश इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस आई होल डिवाइडेड बाय आई, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस आई रेज टू पावर -1. ओके, सो P डैश C इज योर कितना है तुम्हारा 400. सो 400 इंटू 1 प्लस आई मैंने निकाला ही नहीं है ना. सो I इज इक्वल टू R बाय 100 दैट इज 8 अपॉन 100, 0.08. 0.08 whole divided by 0.08, 1 minus 1 plus 0.08 raised to power -4. ठीक है, तो यहाँ पे P डैश इज इक्वल टू 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन 8 इन ब्रैकेट 1.08 into 1 minus 1.08 raised to power -4. 8 1 जा 8 5 जा 40, 0 0 0. So 500 into 1.08, 1 minus this value they have given 0.7350. कितना आएगा आंसर? चलो कैलकुलेट करो रुपीस. Everyone is getting 2146.5. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2146.5. Question 14. An annuity immediate is to be paid for some years at 12% per annum. तो R कितना है यहाँ पे 12% per annum. Annuity immediate कितनी है? The present value of the annuity is rupees 10,000. मतलब P कितना है यहाँ पे 10,000 and the accumulated value is rupees 20,000. Find the amount of each annuity payment. जो मैंने फॉर्मूला 3 लिखवा के दिया था, क्या था तुम्हारा फॉर्मूला 3? 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू I अपॉन C था ना, वेयर I इज इक्वल टू R अपॉन 100. ठीक है, तो यही फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है. दे हैव गिवन A कितना दिया है रुपीज 20,000. P कितना दिया है रुपीज 10,000. ओके, रुपीज 10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. सो I इज इक्वल टू R अपॉन 100 दैट इज 12 अपॉन 100. सो ये कितना आ जाएगा 0.12. सो यहाँ पे 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू I अपॉन C. 1 अपॉन P मीन्स 1 अपॉन 10,000 माइनस 1 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन C. तो हम मुझे ये C की वैल्यू निकाल के पता कैसे निकालेंगे. अगर हमने LCM लिया, LCM क्या होगा 20,000. सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन C इंटू 100. सो 1 अपॉन 200 इज इक्वल टू 12 अपॉन C. तो C is equal to 12 into 200. So that is 2,400 rupees. Therefore, the amount of each annuity payment is rupees 2400. Okay, 2400. आया सबका 2400? Yes, ma'am. Question 15.
For an annuity immediate paid for 3 years, n is 3 years and interest compounded at 10% per annum and present value is this. What will be the accumulated value? चलो solve करो. A निकालना है. A is equal to क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे? चलो निकालो. Easy है बहुत. C upon सब वही है. For an annuity immediate paid for rupees interest rate and the present value P कितना दिया है तुम्हारा 24,000 P दिया है और हमको N भी दिया है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है. ओके इसके लिए दूसरा फॉर्मूला. एक ही मिनट. देखो see what they have asked us for an annuity immediate paid for 3 years मतलब n कितना है 3 years annuity immediate है. Okay with interest compound at 10% per annum. The present value is rupees 24,000 मतलब P कितना है यहाँ पे 24,000. What will be the accumulated value after 3 years? So यहाँ पे P 15 P rupees 24,000. Rate of interest is 10% per annum. N is your 3 years. और accumulated value we have to calculate. Annuity दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया है. यहाँ पे P दिया है 24,000. तो ऐसे इसमें क्या करेंगे हम? given है तो A is equal to क्या है? P into 1 plus I whole raised to power n. So A is equal to P क्या रहेगा? ये नोट कर लो एक फॉर्मूला स्टार मार्क. ठीक है. ए क्या P क्या है तुम्हारा 24,000 इंटू 1 प्लस I कैसे निकालेंगे? R बाय 100 रेस टू पावर 3. चलो निकालो. 24,000 R बाय 100 मतलब 0.1 मतलब 1.1 का क्यूब. 1.1 का क्यूब कितना दिया है? 1.331 होगा ना. So A is equal to 24,000 into 1.331 कितना आया रुपीस? Everyone is getting 31944. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 31944 is your accumulated amount after 3 years is 31,944. अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 16. A person set up a sinking fund in order to have rupees 1 lakh. 1 lakh क्या है तुम्हारा? Accumulated amount after 10 years. N क्या है तुम्हारा? 10 years. What amount should be deposited by annually? By annually मतलब क्या? साल में 2 बार. Okay, by annually मतलब twice in a year. What amount should be deposited? मतलब what we have to calculate? C हमको calculate करना है. ठीक है. That pays 5% per annum compounded semi annually. Semi annually मतलब twice in a year. मतलब n यहाँ पे कितना रहेगा? n is equal to 10 into 2 मतलब 20 रहेगा और r is equal to 5 by 2 मतलब 2.5. ठीक है. चलो 16. A is rupees 1 lakh. N is equal rate of interest is 5% per annum. So R is equal to 5 by 2, that is 2.5%. So I is equal to R by 2, R by 100, R by 100. So 2.5 upon 100, that is 0.025 आएगा I. So A is again and N क्या रहेगा तुम्हारा? N is equal to 2N, मतलब 2 into 10, that is 20. Okay, तो यहाँ पे A is equal to C by I 1 plus I whole raised to power n minus 1. So A is equal to, sorry,
C we have to calculate. A is 1 lakh. C upon I is here 0.025. 1 plus 0.025 raised to power 20 minus 1. So 1 lakh is equal to C upon 0.025 in bracket 1 plus 0.25 raised to power 20 minus 1. So 1 plus 0.25 is 1.627. So 1 lakh is equal to C upon 0.025 in bracket 1.675 minus 1. So 1 lakh is equal to C upon 0.025 0.675. कितना आएगा C की वैल्यू? So 0.675 into C is equal to 1 lakh into 0.025. So 1, 2, 3, 4. C is equal to 0.675. कितना आया C की वैल्यू? 3703.70. 3703.70. So amount of rupees 3703.70 ये क्या रहेगा तुम्हारा biannually जाएगा into the account. ठीक है? This will be in rupees. चलो miscellaneous. A contract that pledges payment of an agree upon amount of a person or his or her nominee on the happening of an event covered against is technically known as life insurance. Insurance companies collect a fixed amount of their customer at a fixed interval of time. This amount is called premium. Okay. Following are different type of insurance: life insurance, health insurance, and liability insurance. Following are different types of insurance. कौन से liability insurance होता है, life insurance होता है, health insurance होता है. तो ऑप्शन क्या है इसका? आंसर क्या है? All of three. By taking insurance, an individual reduce the risk of an accident, reduce the cost of an accident, transfer the risk to someone else, converts the possibility of large loss to certainty of a small one. क्या आएगा? Converts the possibility of large loss. जो भी लॉस है वो छोटे इसमें हो जाता है. ठीक है? You get payment of rupees 8,000 at the beginning of each year for 5 years. At what is the value of the annuity? ये कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? फॉर्मूले में डालो और कैलकुलेट करो. What is the value of the annuity? In an order payments or receipt 35720. 35720. पक्का सबका यही आ रहा है? हाँ. In an ordinary annuity, payments or receipts occur at quarterly basis. तो सब होना चाहिए. Quarterly basis, mid of each period, end of each period, beginning of each period. ये तो सभी है. क्वेश्चन नंबर 6 का. ए इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी. ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है? ऑर्डिनरी एन्युटी बोला है. पेमेंट्स एंड और रिसिप्ट्स ऑकर एट At the end of each period. हाँ, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. चलो क्वेश्चन नंबर 8. अमाउंट ऑफ एन्युटी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड present value of annuity.
Rental payment for an apartment is an example of ये है इसका आंसर परपेचुएटी। ये तुम्हें नहीं है पर पता नहीं मिसलेनियस में क्यों दिया। क्वेश्चन नंबर 9 डैश इज अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लोज ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। डैश इज अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लोज ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बी है क्या? ए बी है उसका आंसर। The retirement annuity is particularly attracted to someone who has a severe illness, risk of low longevity, large family, chance of high। ये है उसका डी है उसका आंसर। Fill in the blanks। An installment of money paid for insurance is called, क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम। यस प्रीमियम। जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस होता है, हाँ लाइफ। द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, Property value. यस प्रॉपर्टी वैल्यू। द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू टू इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसी वैल्यू बोलते हैं ना, पॉलिसी वैल्यू। Yes, ma'am. द पर्सन हु रिसीव्स एन्युटी इज कॉल्ड एन्यूटेंट। मैंने लिखवा के दिया था, याद है? एन्यूटेंट। द पेमेंट ऑफ ईच सिंगल एन्युटी इज कॉल्ड, उसको प्रीमियम भी बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं। इसको प्रीमियम भी बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं। Installment. The intervening time between payment of two successive installment is called a period. An annuity where payment continue forever is called, जब forever continue होता है तब उसको ये बोलते हैं perpetuity। जो forever तुम्हारा payment continue रहेगा। If payment of an annuity fall due to the beginning of due at the beginning of every period, beginning में क्या होता है? Annuity due बोलते हैं ना उसको। If payment of an annuity fall due at the end of the every period, the series of annuity called annuity ordinary or immediate। चलो true or false? General insurance covers life, fire and theft। theft cover करता है क्या? नहीं, तो this is false। The amount of claim cannot exceed the amount of loss, ये true है। Accident insurance has a period of 5 years, false, totally false। Premium is the amount paid to the insurance company every month, true। Payment of every annuity is called an installment, true। Annuity certain begins on a fixed date and ends when an event happens, true। Annuity contingent begins and ends on certain fixed dates, ये false है। The present value of an annuity is the sum of the present value of all the installments, true। The future value of the annuity is the accumulated value of all the installment, false है। क्योंकि हमको कुछ ना कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो मिलता है। मैंने ये एग्जांपल भी दिया था कि सपोज इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 पर मंथ इन अ बैंक, सो आफ्टर अ ईयर मुझे कितना मिलेगा? 1,20,000 मिलेगा, लेकिन प्लस कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड अमाउंट मिलेगा। तो वो प्लस 1,20,000 प्लस जो भी मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट रहेगा वो टोटल मिला के मेरा फ्यूचर वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यूज ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, तो ये फॉल्स है। Sinking fund is set aside at the beginning of the business, true। ठीक है, ये मिसलेनियस मुझे कब तक दोगे? आई थिंक आई शुडंट आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं है ये क्वेश्चन का। हाँ क्या? सी नो one is even responding। कब तक दोगे बेटा? मैम नेक्स्ट क्लास से पहले। आदित्य, हाँ यस मैम। नेक्स्ट क्लास के पहले तो मतलब मेरा नेक्स्ट क्लास तो थर्सडे को है, तो तुम लोग थर्सडे के पहले दोगे? हाँ
क्या? रिस्पॉन्ड। Okay, then shall I start with derivatives? अरे ये तो बोल ही सकते हो ना, डेरिवेटिव Yes, स्टार्ट करूँ ma'am. कि नहीं करूँ? हाँ, Yes, ma'am. चलो लिखो चैप्टर 3 डेरिवेटिव्स, सॉरी डिफरेंशिएशन। Write this. If y is equal to f of x is a real valued function, then the rate of change of y with respect to x is known as derivatives. Derivatives of y with respect to x. मतलब y अगर कोई भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, कोई भी हमारा फंक्शन है, कोई भी रियल फंक्शन है, तो अगर हमने उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx. सपोज इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ x, it will reflect on the value of y. So here x is your independent variable and y is your dependent variable. y is your dependent variable. अगर मैंने x की वैल्यू चेंज की तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है, ये होता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड? 11th में तुमने कुछ उसके फॉर्मूलेस भी पढ़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन जो होता है n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1। याद है क्या 11th के प्रॉब्लम फॉर्मूलेस किसी को? वैसे मैं पूरा रिवाइज करने वाली हूँ, ठीक है, चलो लिखो अभी फॉर्मूलेस। फर्स्ट है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन जो होगा n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल है एक्स रेस टू पावर 3, तो यहाँ पे n कितना है तुम्हारा 3, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 3x²। सिंपली अगर करना है तो क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स रेस टू पावर 25, यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे -1 मतलब 24। जैसे कि x रेस टू पावर 25, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 25x रेस टू पावर 24, जो भी पावर है उसमें से -1 करना। जैसे कि x रेस टू पावर 6 है तो क्या होगा 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5, x रेस टू पावर 29 है, सो 29 x रेस टू पावर 28। ये है तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ
डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रहेगा और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो ए एक्स लॉग इंटू ए टू द बेस ई रहेगा हमेशा। ठीक है। थर्ड है तुम्हारा डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही ओनली। ओके, यहाँ पे फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। फिफ्थ है योर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स। सिक्स्थ है डी डी एक्स ऑफ 1/x, तो डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो अभी कोई मुझे ओके ठीक है। सेवेंथ इज योर डी डी एक्स ऑफ k इंटू एक्स। देखो अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने डेरिवेटिव ऑफ 3x किया, तो ये 3 क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है। सो 3x में से मैं 3 बाहर निकालूंगी, तो मैं कैसे लिखूंगी डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये सब तुमने 11th में पढ़ा है। ओके, सो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ओके, सो यहाँ पे कितना आएगा k। 8th इज योर डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। 9th इज योर डी डी एक्स ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय dx। ओके, सो ये जो नाइन्थ है ये वाली जो 3.1 एक्सरसाइज है ये इसके ऊपर बेस्ड है। अभी कुछ रूल्स है तुम्हारे, लिखा आप लोगों ने ये सब लिखा क्या फॉर्मूलेस? मैम एक मिनट। यस ओके, मैम 7th फॉर्मूला से बाकी लिखी। आदित्य ये लिखा आपने फर्स्ट वाला? हाँ मैम एक मिनट लिख रहा हूँ। ओके, हाँ लिखा मैम। डन। यस मैम। यस मैम। सी अभी कौन सा दिया था मैंने, सी दिस वन 6। देखो 6 क्या है, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ कि कैसे निकालना है, याद करने मतलब उसको u बाय v रूल जो हमारा है क्वेश्चन रूल वो लगाने की जरूरत है। 6 क्या दिया था मैंने डी डी एक्स ऑफ 1/x, उसका क्या था -1/x स्क्वायर। ठीक है, -1/x स्क्वायर। अगर सपोज मैंने अब बोला डी डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर, सो 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो ये देखो यहाँ पे रेज टू पावर 1 था तो ये -1, और यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 1 + 1 2, ऐसा याद रखना है। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ कि कैसा मेमोराइज करना है। यहाँ पे क्या है 1/x टू पावर 2, ये क्या था 1/x टू पावर 1। न्यूमरेटर में क्या था 1 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया था 1 + 1 x, और यहाँ पे माइनस आ गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -2 अपॉन यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 + 1, तो यहाँ पे x रेज टू पावर 3। अभी डी डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू पावर क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/x रेज टू पावर 4। फिर डी डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा -4/x टू द पावर 5। तो ऐसा बढ़ते जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ
1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा -5 अपॉन एक्स टू द पावर 6। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो ये लिख लो इसको, फिर मैं रूल्स बताती हूँ। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। If u and v are differential function, if u and v are differential function of x, so y is equal to u plus minus v. तुम्हारे स्कूल में कैसे लिखते हैं? स्कूल और कॉलेज में पूरा ऐसा लिखते हैं क्या? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरा ऐसा लिखते हैं क्या? या ऐसे लिखते हैं और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? फर्स्ट वन और सेकंड वन, या स्टार्ट ही नहीं किया अब तक? सेकंड वन। सेकंड वन, ओके ओके, तो हम लोग सेकंड वन ही करेंगे। ओके, तो अभी ये क्या है? इफ u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, अगर u एंड v डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है तो प्लस, अगर प्लस है कोई भी इक्वेशन में प्लस है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ v। ठीक है, प्लस माइनस में हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव लगाते हैं, हम लोग उसको सेपरेट भी कर सकते हैं प्लस प्लस माइनस में। ठीक है, डिफरेंशिएट करना मतलब सेपरेट करना, इंटीग्रेट करना मतलब साथ में लाना, ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर ये चैप्टर 3 तुमको समझा क्लियरली, और इसमें कोई डाउट मत रखना चैप्टर 3 में, अदरवाइज चैप्टर 4, 5, 6, 7 में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। उसके बाद हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अगर ये समझा है, इसके बेसिक्स पूरे क्लियर है, तभी तुमको 4, 5, 6, 7 बहुत इजीली जाएगा। तो इसमें कोई डाउट मत रखना, कोई भी डाउट है तो इजीली पूछो। ओके, लिखा ये? 1 मिनट मैम। डन? Yes ma'am. Second one is your this one is your first rule. Second one is your multiplication rule. मल्टीप्लीकेशन रूल, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। its second name is प्रोडक्ट रूल। ओके, सपोज y इज इक्वल टू u इंटू v है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u इंटू v। अभी इसको हम लोग u इंटू v रूल भी बोलते हैं। देखो, अभी u इंटू v में क्या होगा? u इंटू v में क्या है? हमेशा रखना, मल्टीप्लीकेशन में, एक्सपोनेंट्स में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में हम लोग प्लस करते हैं, डिवीजन में हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी। ओके, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अभी डी डी एक्स ऑफ क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू
डी डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा लिखा तभी भी करेक्ट है। अगर किसी ने सेकंड, देखो अगर किसी ने फर्स्ट को बाहर निकाला, तो भी सही है। अगर किसी ने सेकंड को बाहर निकाला तो भी सही है। ठीक है, अगर मैं ऐसा भी लिखूंगी v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस कर रहे हैं। या तो तुम फर्स्ट वाले मल्टीप्लीकेशन को, फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर निकालो या सेकंड वाले फंक्शन को बाहर निकालो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, और वी कैन से v इंटू डी डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v। थर्ड वन इज योर क्वेश्चन रूल, दैट इज डिविजन रूल, u बाय y रूल। हो गया ये लिख के? आपको ये सब याद आ रहा होगा आई गेस, है ना? डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड वन इज क्वेश्चन रूल। उसको दूसरा नाम है u बाय v रूल। सपोज y इज इक्वल टू u बाय v है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी डिवीजन है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, dy बाय dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को बाहर निकालेंगे, v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, v स्क्वायर। अभी जो मैंने बताया ना, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स होगा ना ये। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग u बाय वी रूल से भी निकाल सकते हैं। u बाय वी रूल से इसका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही आएगा। अगर मैंने ऐसा किया कि डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, इसका आंसर अगर हम लोगों ने u बाय वी से किया तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब ही आएगा। ठीक है, डन। Yes, ma'am. Now write derivative of composite function. Derivative of composite function. Derivative of composite function. लिखो, if y is equal to f of u is a differentiable function, if y is equal to f of u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differential function of x, is a differentiable function of x. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx, विच इज नथिंग बट योर चेन रूल, देखो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मीन्स उसमें x नहीं रहेगा, x के प्लेस में कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। ठीक है, तो log ये x के जगह पे क्या रहेगा, 2x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वी विल कंसिडर दिस एज x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या रहेगा, 2x प्लस 3। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव हमको करना होता है, तो ये हमेशा चेन में जाएगा, चेन में जाता है ये, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं चेन रूल।
समझा? जब तक हम लोग इसके एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली x नहीं रहेगा, x के जगह पे कुछ ना कुछ दूसरे फंक्शंस रहेंगे। अगर यहाँ पे log x होता तो हम लोग सिर्फ 1/x लिखते, लेकिन log के जगह पे क्या है, यहाँ पे x के जगह पे क्या है 2x + 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे we have considered 2x + 3 as x, so this will be 1/x, but x is here 2x + 3, so 1/2x + 3 into ddx of 2x + 3। ओके, नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स, तब तुम्हें क्लियर और ज्यादा क्लियर होगा। हो गया ये लिख के? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या है तुम्हारा, y = 3x² + 8x - 7 होल रेज टू पावर 5/3। x, अगर मैंने इसको x माना तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, x रेज टू पावर n के फॉर्म में हुआ ना। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n × x रेज टू पावर n - 1। लेकिन यहाँ पे x है कि ये कंपोजिट फंक्शन है, ऑब्वियसली ये कंपोजिट फंक्शन है, तो हमको इसमें क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x रेज टू पावर 5/3, सो 5/3 × x रेज टू पावर 5/3 - 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ddx ऑफ 3x² + 8x - 7 होल रेज टू पावर 5/3। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 5/3 into 3x² + 8x - 7 5/3 - 1 into ddx ऑफ क्या होगा, ये वाला कंपोजिट फंक्शन है तो हमको ये भी, इसका भी हमको डेरिवेटिव करना होगा, into ddx ऑफ 3x² + 8x - 7। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/3, ये क्या हो जाएगा 3x² + 8x - 7 2/3 into क्या रहेगा तुम्हारा ddx ऑफ 3x² + ddx ऑफ 8x - ddx ऑफ 7 -7 -7 +7, ये माइनस आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये क्या है, x के जगह पे कोई भी अगर दूसरा फंक्शन आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, मतलब उसमें x नहीं रहेगा। जहाँ पे x नहीं रहेगा हमको वहां पे चेन रूल अप्लाई करना होता है। बुक में दूसरी मेथड है, मैं दूसरे मेथड से समझा रही हूँ, लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, लेकिन जब हम लोग वो अल्टरनेटिव मेथड करेंगे तुमको अल्टरनेटिव मेथड ज्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, जो मैं अभी मेथड बता रही हूँ वो अल्टरनेटिव मेथड ही है। अदरवाइज हमको इसको लेट u = 3x² + 5x - 7 फिर उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 5/3 into 3x² + 8x - 7 3x² + 8x - 7 रेज टू पावर 2/3 इंटू, अभी देखो ddx ऑफ 3x², अभी देखो ddx ऑफ 3x² क्या होगा, ये हम लोग x रेज टू पावर n में करेंगे 3x², तो 3 को मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एक्स कितना होता है, k होता है, लेकिन यहाँ पे क्या x टू द पावर 1 है और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा तुम्हारा 1 होगा। अभी यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करेंगे, 3x², तो ddx ऑफ 3x² क्या होगा, 3x², 3 इंटू ddx ऑफ x²। अभी x² को हम लोग इसके फॉर्म में ले सकते हैं, तो क्या होगा, ये x² है मतलब 2 इंटू x रेज टू पावर 2 - 1, दैट इज नथिंग बट 2x। समझा ये, अंडरस्टूड, यस और नो, या फिर से बताओ। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 3 इंटू ddx ऑफ x² प्लस ddx ऑफ 8 इंटू ddx ऑफ x माइनस ddx ऑफ 7। तो यहाँ पे क्या होगा 5/3 3x² प्लस 8x - 7 होल रेज टू पावर 2/3 इंटू 3 इंटू x² मतलब 2 इंटू x होगा। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग,
या अभी मैंने बताया x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर n माइनस वन, सो एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वन, दैट इज 2x, ये 2x आएगा, प्लस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0, सो दैट इज 5/3 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 2 रेज टू पावर 3 इंटू 6x प्लस 8, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? dy by dx क्या आ गया इसका 5/3 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 होल रेज टू पावर 2/3 इंटू 6x प्लस 8। अंडरस्टूड? फिर से बताओ। Yes, ma'am. ओके देखो y क्या है 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 5/3, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है बेटा x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने x क्यूब लिया, ये n है और ये क्या है x है, तो x रेज टू पावर n क्या होगा n इंटू x raised to power n minus 1, so it is nothing but 3 into x raised to power 3 minus 1, so 3 into x square, ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x के जगह पे कोई दूसरा फंक्शन है, सिर्फ ओनली x नहीं है, x से ज्यादा भी है, तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तुम्हारा x रेज टू पावर n है, तो n यहाँ पे सामने सामने आ जाता है, तो 5/3 3 ये एज इट इज 5/3 माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ, ये हमको करना होगा, ठीक है, इनको इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस, क्योंकि हमको चेन रूल में करना है, ये हमारा चेन रूल है, सो डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, तो ये हमने एज इट इज सॉल्व किया 5/3 माइनस वन मतलब 2/3 इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट है ना, x को x के साथ करेंगे, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम लोग बाहर निकालेंगे, सो 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, सो 3 इंटू 2x, सो 3 इंटू 2x विल बी नथिंग बट 6x और डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0, सो 6x प्लस x और ये एज इट इज। समझा? Yes, ma'am. चलो लिखो। डन।
एक्सरसाइज 3.1. ओके, ठीक. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम लोग चेन रूल, यहाँ पे भी हमको चेन रूल लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, लेट u इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 6. तो ये y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 6 हो गया. ठीक है, तो मतलब क्या हो गया अभी, y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 6. मतलब अगर हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई du इज इक्वल टू 6 इंटू यू रेज टू पावर 6 माइनस 1. तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू यू रेज टू पावर 5. बट व्हाट इज योर u, 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x. तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी है. हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अल्टरनेट मेथड से करेंगे, मेथड 1 और मेथड 2. आप ही लोग मुझे बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा. ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू फाइंड dy बाय dx हमको फाइंड आउट करना है. y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. ये मेथड 1 है. ओके, पहले मेथड 1 से सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा, du बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x. तो ये क्या हो जाएगा, du बाय dx. अभी डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ x, 1. यस 1. डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x, अभी बताया मैंने, 5-6 एग्जांपल्स बताया उसके. देखो पेज में लिखवा के भी दिया है मैंने. कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x, -1 upon x square. yes, minus 1 upon x square. So that will be du by dx is equal to 1 minus 1 upon x square. So x square minus 1 upon x square. Your du by dx is x square minus 1 upon x square. Okay. अभी क्या है, y is equal to, फिर y is equal to अंडर रूट ऑफ u. फिर अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे. तो अभी क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट u. बट u क्या है अपना, x प्लस 1 अपॉन x. सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x. ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, dy बाय dx. तो अभी बाय चेन रूल हम लोग कैसे लगाएंगे, बाय चेन रूल dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू dy बाय, हाँ du बाय dx ना, du बाय dx इंटू dy बाय dx, हाँ ठीक है, इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय dx कितना आया था तुम्हारा, dy बाय dx कितना आया था, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x इंटू dy बाय dx कितना था तुम्हारा, du बाय dx है वो, du बाय dx, इट शुड बी du बाय dx. हाँ, du बाय dx इज x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, dy बाय dx. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x. ये मेथड 1 से हो गया तुम्हारा. अभी मेथड 2 क्या है, मेथड 2 अल्टरनेटिव मेथड क्या है तुम्हारा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. तो अगर हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है ना. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने पूरा इसको x माना तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी डी एक्स ऑफ, क्या होगा, x के जगह पे क्या है यहाँ पे, इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x.
तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ 1/x। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज सॉरी x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वायर। आई विल राइट हियर। तो क्या आएगा तुम्हारा ये dy बाय dx इज इक्वल टू 1/√x प्लस 1/x in bracket 1 minus 1/x square, which is nothing but 1/2 under root of 1/2 under root of x plus 1/x in bracket x square minus 1/x square। ये मेथड से भी उतना ही आंसर आएगा, ये मेथड से भी उतना ही आंसर आएगा। फिर क्या आएगा फाइनल आंसर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/x। ठीक है, मेथड 1 थोड़ा ये लेट करो, फिर उसमें उसकी वैल्यू पुट करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, फिर चेन रूल का फॉर्मूला लगाओ, फिर चेन रूल के फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करो। ये थोड़ी ट्रिकी है। ये मेथड 2 बहुत इजी है। कौन से मेथड से जाना है बताओ? Ma'am, the alternative one only. यस, चलो राइट इट डाउन। डन। Ma'am, just a minute.
Done. Yes, ma'am. Yeah. Question 2. Y is equal to cube root of a square plus x square. Cube root of a square plus x square. Differentiate with respect to x. dy by dx is equal to d dx of क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. देखो अगर अंडर रूट ऑफ एक्स है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स रेज टू पावर 1/2. अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो आई कैन राइट एक्स रेज टू पावर 1/3. अगर फोर्थ रूट ऑफ एक्स है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ एक्स रेज टू पावर 1/4. यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3. अभी ये क्या बना, दिस इज योर x एंड दिस इज योर n. सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n इज n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, ये जो हमने x कंसिडर किया उसका भी होगा ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1/3 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. 1/3 माइनस 1 मीन्स व्हाट, -2/3. so -2/3 into डी डी एक्स ऑफ a स्क्वायर plus डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. so dy by dx is equal to 1/3 a square plus x square whole raised to power -2/3. अभी देखो into ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ a square will be डी डी एक्स ऑफ a square will be कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव, a इज कांस्टेंट ना, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट का क्या होगा डेरिवेटिव, 0. 0. so 0 plus डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ यू टेल मी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. बोलो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x. yes 2x. so it will be 0 plus 2x, 0 plus 2x. तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/3 -2/3 इंटू 2x. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x/3 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -2/3 dy बाय dx. समझा, समझा? Yes, ma'am. चलो लास्ट वाला करते थर्ड, देन आई विल लीव दिस क्लास. एग्जाम में चेन रूल वाले ही प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं. ओके, डन. Yes, ma'am. कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3?
Can you all solve question number 3? Yes, ma'am. At least try to solve. Try करो solve करने का side by side. I will also help you. Three. 5x cube minus 4x square minus 8x raised to power 9. So let y is equal to कितना है तुम्हारा 5x cube minus 4x square minus 8x whole raised to power 9. So differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to d dx of 5x cube minus 4x square minus 8x whole raised to power 9. So dy by dx is equal to 9 into 5x cube minus 4x square minus 8x whole raised to power 9 minus 1 into ddx of 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x. क्योंकि इसको अगर हमने x माना है तो ये चेन रूल में इसका भी डेरिवेटिव हमको करना है क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x होल रेज टू पावर 8 इंटू क्या आ जाएगा अभी यहाँ पे ddx ऑफ 5x क्यूब माइनस ddx ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ddx ऑफ 8x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा dy बाई dx इज इक्वल टू 9 इंटू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x इंटू 8 इंटू अभी बताओ ddx ऑफ 5x क्यूब कितना होगा. मैम आंसर इज कमिंग 9 into 5. मुझे आंसर नहीं चाहिए. आई नीड टू नो डेरिवेटिव ऑफ 5x क्यूब. And so we Five. will take 5 outside, so 5 into derivative of x cube, which is 3x square. So 15x square would come. Yes, it will be 15x square. Shall I write directly 15x square? सबको समझा 5x cube का कैसे आया? 5x cube C ddx of 5x cube. So we will take 5 out because 5 is constant and we are differentiating x. x क्या होगा तुम्हारा फिर ddx of x cube मतलब x raised to power n. x raised to power n मतलब x cube. So 3 into x raised to power 3 minus 1. So 3 into x square. So 5 into 3 into x square will be 15x square. आया सबका 15x स्क्वायर. समझा ये कैसा है तो 15x स्क्वायर. Yes, ma'am. या ये 20 से आगे बढ़ता नहीं है. सो आई हैव टू रब इट. ओके सो दिस विल बी योर 15x स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 8x माइनस 8x ये माइनस 8. तो आंसर कितना आया तुम्हारा यही आएगा सेम. dy by dx is equal to 9 into 5x cube minus 4x square minus 8x whole raised to power 8 into 15x square minus 8x minus 8. This will be your final answer dy by dx. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let me check miscellaneous. I will give some questions as homework from miscellaneous. This chapter will take time, huh? 3.5 ज्यादा है इसका. 3.6 भी है बट छोटे छोटे है. पैरामेट्रिक फंक्शन. Yes. Solve the following. हाँ देखो ये वाला सॉल्व करो एज ए होमवर्क. मिसलेनियस. दिस वन कंपोजिट फंक्शन है. दिस वन इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 8x. नहीं यहाँ पे रेस्ट टू पावर 4 है फिर रेस्ट टू पावर अच्छा 5 रेस्ट टू पावर 4
फिर होल रेज टू पावर 1/5, तो ये 1/20 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व 1 2 एक u/v वाला भी है। ओके नहीं आएगा ये u/v वाला, हमने किया नहीं है स्टार्ट। ये डबल डेरिवेटिव आ गया ये। चलो 1 और 2 होमवर्क, 1 और 2 क्वेश्चन होमवर्क है। अगर 2 नहीं आया तो कोई बात नहीं, 1 और 2 ट्राई सेकंड। ओके 1 और 2, अगर 2 नहीं है तभी भी कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। 1 और 2 होमवर्क ले लो। फाइन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाय बाय। Yes, ma'am. Thank you, आई ma'am. होप आपको समझा। ये चैप्टर 3 बेसिक है, रिमेनिंग 4 5 6 7 8 चैप्टर का। तो चैप्टर 3 पे ट्राई टू अटेंड एवरी लेक्चर्स, ओके, मिस मत करना। Yes, ma'am. चलो बाय बाय। Thank you, ma'am. या बाय, हैप्पी वीकेंड।